बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी जिसका कोर्स कोड है MTH251 इसमें लेक्चर नंबर 8 को स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में इन दिस लेक्चर वी विल डिफाइन limit point of a set, we will define closed set, we will discuss some examples related to limit points and closed sets, we will define clear of a set, we will prove a theorem on closed sets. So definition 1 में हम सबसे पहले limit point of a set किसी भी मीट्रिक स्पेस में डिफाइन करते हैं। हम अस्यूम करते हैं कि XD हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, इसमें कोई सबसेट A लेते हैं। A is a subset of X. A point X belongs to X is called a limit point of a set A if each open sphere center at X contains at least one point of A different from X. Symbolically, X belongs to X is a limit point of the set A if SRX, that is open sphere with center at X and radius R, minus the point, it is called deleted neighborhood, minus the point X intersection A is not equal to phi for every R greater than 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो फिर द पॉइंट X इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A. डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर हम लिमिट पॉइंट मीट्रिक स्पेस के किसी सबसेट का फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास XD मीट्रिक स्पेस हो और A इसमें सबसेट हो तो हम इस सेट A का लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं। बिलफर्ज हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है XD, XD इज ए मीट्रिक स्पेस। इस मीट्रिक स्पेस में हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट A है। दिस इज ए सबसेट A of X. Let XD be a metric space and A is a subset of X. Now we are taking in general a point X belonging X. Now remember this X and A is a subset of X. Remember this X can be a member of A or this X cannot be a member of A. It can be outside A, that is X can be in X but outside A, in the complement of A. So in general we are taking X belongs to X. This point X belonging X will be limit point of the set A, although it may be a point of A or it may not be a point of A, but it will be a limit point of the set A if, so this if is important, limit point of the set A if each open sphere, now this each is important, if each open sphere centered at X, if for each open sphere SR with center at X R is greater than 0, जो भी open sphere with center at X and radius R लें, जितने भी open spheres with center at X and radius R may be from may be any arbitrary number, it can be greater than 0 but any number. So for every open sphere with center at X and radius R, for every stands for R is negligible small, however small this R may be, this open sphere intersects the set A with a point other than X.
दिस कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज कि जब भी इस ओपन स्फीयर में से इस पॉइंट x को हम निकाल लें तो तब भी इसका इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी आता हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट x जो है वो इस सेट A का लिमिट पॉइंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर एवरी ओपन स्फीयर, तो फिर ये पॉइंट x इस सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट x का इस सेट A के लिए लिमिट पॉइंट बनना ज़रूरी है कि इस x का हर ओपन स्फीयर A को इंटरसेक्ट करे एट ए पॉइंट अदर देन x। सपोज मैंने इस जगह पर कोई पॉइंट x लिया है तो तब भी ये कैपिटल X का मेंबर है। इसका जो भी ओपन स्फीयर मैं लूँ इसको सेंटर मानते हुए, अगर वो ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस r इस ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन, इसमें से मैं इस पॉइंट x को निकाल दूं और निकालने के बाद इसका इंटरसेक्शन जब A के साथ लिया जाए, अगर वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहे तो फिर हम कहेंगे कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A। लिमिट पॉइंट हमेशा किसी सेट का होता है। इस जगह पर हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट A फाइंड करना चाह रहे हैं। बिलफर्ज अगर मेरे पास मीट्रिक स्पेस में XT is a metric space, here we have a set A and we have a point X outside A. We take an open sphere with center at X and radius R. This R however small may be. This R however small may be. अगर ये ओपन स्फीयर, दिस इज S R X, अगर इस ओपन स्फीयर में से x को मैं निकाल लूँ और फिर मैं इसका A के साथ इंटरसेक्शन लूँ, अगर ये इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो देन x इज नो मोर लिमिट पॉइंट ऑफ A, और अगर ये इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए तो इट मीन्स x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A, और अगर ये नॉट इक्वल टू फाई आए तो इट मीन्स x इज लिमिट पॉइंट of the set A. But remember, this is for every open sphere. So let's go back to the definition. Let XD be a metric space and A is contained in X. A point X belonging X is called a limit point of a set A if each open sphere centered at X contains at least one point of A different from X. This is different from X. For different from X, we just take this X out of the open sphere और फिर उसका A के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो different from A, different from X. Symbolically, X belonging X is a limit point of the set A if SRX minus X intersection A is not 5 for every R greater than 0. जो भी open sphere with radius R लें with center at X. So, dear student, कोई भी point X metric space capital X
का लिमिट पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट x किसी सेट A का लिमिट पॉइंट होगा अगर एवरी नेबरहुड विद सेंटर एट x एंड रेडियस r इंटरसेक्ट करता हो A को एट ए पॉइंट अदर देन x. At a point this intersects at a point other than x. This intersects at a point other than x. This SRX intersects A at a point other than x. This gives non-empty. तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट x जो है ये लिमिट पॉइंट है इस सेट A का. Okay. So let's consider some examples. First example में we are considering R as a usual metric. Here we just assume that we have XD is a metric space where D is a usual metric. Usual metric means D from R cross R to R is defined by D of xy is equal to x minus y modulus for all x, y belonging R. So this is a usual metric space. Here we are taking, so we are on the real line actually. We are on the real line. So this is our real line. So the situation is here somewhere we have say 0, here somewhere we have say 1, here somewhere we have say 1 by 2, here it will be somewhere 1 by 3, here it will be somewhere 1 by 4, here it will be somewhere 1 by 5 and so on. So we are taking this x is equal to the ground set R with the metric D is a usual metric. We are taking A subset of x. This A in this case is equal to 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on. This is the set A, which is obviously a subset of R. Then you can notice that if we take, you can notice that 0 is not a member of A because we will never reach to 0. Although this 1 by n is approaching 0 because 1 by n belongs to A for n belonging set of natural numbers. That is, if we put n equal to 1, 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on, these are members of A. As n approaches infinity, 1 by n approaches 0. You can notice over here. So we will never attain infinity, therefore we will never attain 0. Although there are elements which are very much close to 0 are members of A, but 0 is not a member of A. But this 0 is of course member of R. So here our x is equal to 0 is member of x, that is R, but this x which is 0 is not member of A. But you can notice कि इस 0 का मैं जितना भी स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड लूं और उस नेबरहुड में से मैं अगर 0 को सबट्रैक्ट कर दूं तो तब भी इसका इंटरसेक्शन जब A के साथ लेंगे तो वो मेरे पास नॉन एम्प्टी आएगा, चूंकि 0 के बहुत करीब करीब करीब
बहुत करीब करीब जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो इस सेट ए के मेंबर हैं। यूजुअल मीट्रिक में मैं जब जीरो का ओपन स्फीयर फाइंड करूंगा तो वो ओपन स्फीयर जो होगा ओपन इंटरवल होगा। दिस विल बी एन ओपन स्फीयर ऑफ जीरो विथ से radius epsilon, where epsilon is considered greater than 0 but negligible small. So still right side पर ये epsilon 0, this open sphere would be containing many points of the set A. 0 already is not member of A, but this open sphere, however small epsilon may be, this open sphere S0 epsilon, if I simply subtract 0 from this open sphere, still it will be giving non-empty intersection with A. So we decide that 0 is a limit point of the set A. आपने नोटिस किया कि बेशक 0 A का मेंबर नहीं है, लेकिन ये 0 A का लिमिट पॉइंट है। हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट x इज इक्वल टू r with the usual metric, x is equal to r, again x is equal to r, and we define d from r cross r to r by d of xy is equal to x minus y modulus for each xy belonging R, which is called a usual metric on R. Then we know that in usual metric we know open spheres is an open interval. So here in this case, my dear students, we are taking the set A as closed 0, open 1, open from this. This is semi-open, semi-closed. So it is closed interval from the side 0 and open from 1. So 1 is not member of this set A, whereas 0 is a member of this set. Then every point of A is its limit point. And 1 is also a limit point of A which does not belongs to A. So we notice that here x is equal to r is a complete real line, infinity and minus infinity. We have taken 0, we have taken 1, but 0 is the part of the set and 1 is not part of the set. This is a 0, 1 open interval. So this is the collection of all the points. This set A is the collection of all the points which are lying in between 0 and 1, including 0. 0 is less than or equal to x and x is less than 1, implies this x belongs to our set A, which is equal to 0 and 1, open from 1. This 1 is not member of A. This is not equal to 1. 0 is equal to x, but x cannot be equal to 1. X is always less than 1. So in this case, whatever the point I choose from the set A
इस सेट ए का जो भी पॉइंट मैं लेता हूं x, इसका जितना भी स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड हम लें, जितना भी स्मॉल से स्मॉल ओपन स्फीयर हम लें s एप्सिलॉन x, अगर इस ओपन स्फीयर में से, दिस इज ऑफ एप्सिलॉन रेडियस, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव बट नेग्लिजिबल स्मॉल, अगर इस ओपन स्फीयर में से हम पॉइंट x को डिलीट भी कर दें तो स्टिल इसका इंटरसेक्शन जब a के साथ लिया जाता है तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों? क्योंकि इस ओपन स्फीयर में जो कि ओपन इंटरवल है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस सेट ए के मेंबर हैं, इस सेट ए के मेंबर हैं। सो दिस इंप्लाइज x is a limit point of the set A. So this is true for every element of the set A. This is true for every element of the set A. Now that's why it is mentioned then every point of A is its limit point. That is, every point of A is a limit point of A. Now look, 1 is not member of A, but still if we take an open sphere of 1 of radius however small, say delta, delta is negligible small but greater than 0, negligible small but greater than 0. So however small open sphere with center at 1 and radius delta, if I subtract this 1 from here, that is, if we delete this 1 from the open sphere, still this open sphere would be giving non-empty intersection with A. Why? Because जब इस 1 जो कि इस सेट ए का मेंबर नहीं है, इसका जब भी मैं स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड लूंगा, जब भी मैं स्मॉल से स्मॉल ओपन स्फीयर लूंगा, इस पॉइंट 1 का जब भी मैं स्मॉल से स्मॉल ओपन स्फीयर लूंगा, वो ओपन स्फीयर इस सेट ए के इन पॉइंट्स को कंटेन कर लेगा। वो ओपन स्फीयर एस डेल्टा 1 वो इन पॉइंट्स को कंटेन कर लेगा। ये पॉइंट्स सेट ए के पॉइंट्स हैं, लिहाजा अगर इसमें से मैं 1 को डिलीट भी कर दूंगा तो तब भी इसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मिलेगा। तो इधर से हमें ये पता चला कि 1 अगरचे बिलोंग नहीं करता ए को, बट 1 इज ए लिमिट पॉइंट of the set A. So this example was actually representing that the set A has many limit points, many limit points. Previous example में हमने देखा कि किसी उस set A की सिर्फ एक ही limit point है, 0 is the only limit point of the set A. इसके अलावा कोई और पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि इस सेट का भी हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, और 1 जो कि इसको बिलोंग नहीं करता तब भी वो इसका लिमिट पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, और इसमें भी हम x को सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर लेते हैं, और जो सेट A है उसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेते हैं। तो फिर A has no limit point in the metric space XD. So let's discuss it. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सिचुएशन में भी x जो है वो r के बराबर है, और हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं
R क्रॉस R से R पर बाय द यूजुअल डिस्टेंसेस, यूजुअल मीट्रिक इसको लेते हैं। जिस वक्त यूजुअल मीट्रिक ली जाती है तो आप खूब जानते हैं कि फिर d ऑफ एक्स वाई बराबर होगा x माइनस वाई मॉडुलस के फॉर ईच एक्स वाई बिलोंगिंग R, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस सूरत में x को रियल लाइन लिया हुआ है, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिया हुआ है, और z जो है दिस इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दैट इज 0 एंड प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द सेट z। तो हमने ये बताना है कि दिस सेट z has no limit point in this metric space XD. This set Z has no limit point in this metric space XD, जहाँ पर D जो है वो usual distances हमने लिए हैं। This Z has no limit point. Then we are taking this Z is equal to A. Z has no limit point or A has no limit point in this metric space XD। क्यों? अगर आप इसकी पिक्चर को यहाँ पर देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा X जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जो हमारा सेट A है उसमें स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 0 है, फिर इसका मेंबर 1 है, फिर इसका मेंबर 2 है, फिर इस सेट का मेंबर 3 है, एंड सो ऑन। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज -1 एंड -2 एंड -3 एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने डिपिक्ट किए हैं इस रियल लाइन पर, ये हमारा सेट ए के मेंबर्स हैं। 0 इसका मेंबर है, 1 इसका मेंबर है, 2 इसका मेंबर है, 3 एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स। लेकिन हमें ये बताया गया है कि देन ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट। हम वेरीफाई करते हैं कि क्या कोई पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। बिल फर्ज मैं इस पॉइंट 0 को लेता हूं। अगर मैं इस 0 को लेते हुए एक ओपन स्फीयर फाइंड करूं ऑफ रेडियस 1/2, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओपन स्फीयर्स इन यूजुअल मैट्रिक्स आर ओपन इंटरवल्स, सो दिस विल बी इक्वल टू -1/2 एंड 1/2। सो दिस विल बी द ओपन इंटरवल। अगर इस ओपन इंटरवल में से मैं -0 कर दूं और इस 0 को इस ओपन इंटरवल में से डिलीट कर दूं, तो आपने देखा कि इस ओपन इंटरवल में इस सेट ए का सिर्फ एक ही मेंबर था और वो 0 था। जब मैंने 0 का ओपन स्फीयर लिया तो इस ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर यूजुअल मैट्रिक में मुझे ओपन इंटरवल मिला, और इस ओपन स्फीयर में जो कि ओपन इंटरवल है, इसमें इस सेट ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है और वो एलिमेंट 0 है। अगर इस ओपन स्फीयर में से मैं इस 0 को डिलीट कर देता हूं तो रिमेनिंग सेट का जिस वक्त मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो इंटरसेक्शन मुझे 5 मिलता है। चूंकि इस ओपन स्फीयर में, गोया कि इस ओपन इंटरवल में इस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट था और उस एलिमेंट को भी हमने डिलीट कर दिया है, लिहाजा इसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ 5 आ गया है तो दिस इंप्लाइज 0 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट of the set A. This is not a limit point of the set A. Similarly, हम जब भी कोई इंटीजर लेंगे
x, तो if x belongs to a, it means x is an integer. तो जब भी इस इंटीजर का नेग्लिजिबल स्मॉल रेडियस का ओपन स्फीयर फाइंड करेंगे तो उस ओपन स्फीयर में इस सेट का सिर्फ यही पॉइंट x मौजूद होगा। अगर इस पॉइंट x को हम इसमें से डिलीट कर दें तो फिर इसका a के साथ इंटरसेक्शन हमें phi मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x is not limit point of A. Similarly, अगर मैं कोई और y पॉइंट लेता हूं x का, तो फिर उस y के नेबरहुड में से डेल्टा नेबरहुड में से अगर मैं y को सबट्रैक्ट कर लेता हूं तो उसका इंटरसेक्शन a के साथ हमें एम्प्टी मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई भी सेट x का पॉइंट इस सेट a का लिमिट पॉइंट नहीं है, चूंकि जब भी कोई पॉइंट इस सेट x का लेते हैं उसका ओपन स्फीयर विद सेंटर एट y एंड रेडियस डेल्टा माइनस y इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू phi। और अगर ये phi मिल जाए तो इट मीन्स कि y इज नॉट लिमिट पॉइंट। दिस इंप्लाइज y इज नॉट लिमिट पॉइंट of A. So the conclusion is A has no limit point. A has no limit point. Dear student, हम एक और definition को लेते हैं। A subset F of a metric space X is called a closed set if it contains each of its limit points. So this is an important definition. हमने ओपन सेट्स को स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम क्लोज सेट्स को डिफाइन करते हैं और स्टडी करते हैं। ओपन सेट्स को स्टडी करने के लिए हमें इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन करना पड़ा, ओपन स्फीयर्स को डिफाइन करना पड़ा। क्लोज्ड सेट को डिफाइन करने के लिए हमें लिमिट पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ा। हमने यहाँ पे बताया इस डेफिनेशन में कि ए सबसेट f of a metric space X is closed. So here we have a metric space. मैं पिक्टोरियल एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ कि this is an X D. This is a metric space with ground set X and metric D. F is a subset of this X. Then this F is called closed if it contains all its limit points. If this F contains all its limit points, this is closed, F is closed. If F contains all the limit points of F. Dear students, हमने डेफिनीशन में और पिछली दो एग्जाम्पल्स में इस बात को नोटिस किया कि लिमिट पॉइंट of a set may not be member
of that set. हमने ये देखा कि जब कोई सेट, जैसा कि X में हमने क्लोज 0 और ओपन 1 लिया, तो हमने देखा कि दिस इज सेट A, X को हमने R लिया, हमने देखा कि 1 जो है वो A को बिलोंग नहीं करता, बट 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ A. लिहाजा हमने ये देखा 0 जो है वो A को बिलोंग भी करता है एंड 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है वो जरूरी नहीं उसका मेंबर भी हो. लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे नॉट बी मेंबर ऑफ दैट सेट, और उस सेट का लिमिट पॉइंट उसका मेंबर हो भी सकता है. लिहाजा अगर कोई सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो तो फिर उस सेट को हम क्लोज सेट कहते हैं. अगर कोई सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो तो फिर उस सेट को हम क्लोज सेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, F is closed in the metric space XD if and only if F contains all its limit points. All its limit points. Closed if it contains each of its limit points. This each is important. Each of its limit points. जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए. If X is limit point of A, limit point of F, then this X must belong to F. F must contains all its limit points. Then F is closed. So इसको closed set होने के लिए इसका जो भी लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए. जो भी इसका, इफ X इज लिमिट पॉइंट, अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो फिर ये इसके अंदर होना चाहिए. अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो इसके अंदर होना चाहिए. चूंकि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं कि वो उस सेट के अंदर मौजूद भी हो. अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर इट इज़ नो मोर क्लोज सेट. इसको क्लोज सेट होने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो भी लिमिट पॉइंट है वो इस सेट के अंदर मौजूद हो. ओके, हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. लेट X इज इक्वल टू R with the usual metric. XD is a usual metric space, and because X is equal to R, so this is equal to RD. The distances are the usual distances, that is D of XY is equal to X minus Y. Modulus for all XY belongs to R, we are in R. F is a closed interval. F is a closed set, and this closed set, this closed interval is a closed set. So this is the first information in this example कि जब भी कोई यूजुअल मीट्रिक स्पेस इन R ली जाएगी, यूजुअल मीट्रिक ऑन R हम डिफाइन करेंगे, डिस्टेंसेस आर यूजुअल डिस्टेंसेस, तो फिर क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट्स होंगे. एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन ये हमें दी गई है इस एग्जांपल में कि अगर U ओपन इंटरवल हो, वैसे बाय द वे आप लोगों को पता है कि यूजुअल मीट्रिक में ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स, तो ये क्लोज सेट नहीं है, ओपन सेट है. और फिर थर्ड इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि वेयर एज क्लोज्ड A ओपन B इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज सेट. सो जस्ट लुक एट
we are given with the usual metric in R. This is our ground set X. We are taking any closed interval AB. You remember that this is the collection of all X belonging R which are either greater than or equal to A or less than or equal to B. Then this X is a member of, this X is member of closed interval A B. तो इस क्लोज इंटरवल का हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप ओपन स्फीयर लेंगे ऑफ एनी रेडियस, अगर उसमें से हम x को निकाल भी देंगे तो तब भी इसका इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर ईच x बिलोंगिंग interval AB, X is a limit point of the closed interval AB, and there is no point outside this closed interval which gives this relation. This implies this closed interval contains all its limit points. अगर ये बात है तो it means कि this closed interval AB is a closed set. रिमेंबर, कोई भी सेट क्लोज्ड होता है अगर उसका लिमिट पॉइंट उसके अंदर मौजूद हो। सो दिस इज क्लोज सेट। अगर मैं ओपन इंटरवल लेता हूं, इफ वी आर टेकिंग एन ओपन इंटरवल ए बी, तो यू नो दैट जब भी इस ए का मैं जितने स्मॉल रेडियस का भी नेबरहुड लूं, उसमें से अगर मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तब भी उसका इंटरसेक्शन इस ए बी के साथ नॉन एम्प्टी आता है। इसका मतलब यह हुआ कि ए इज लिमिट पॉइंट of the set open interval AB, but this limit point is not member of AB. Similarly, B is a limit point of the set AB and B is not member of AB. This implies AB does not contain all its limit point. It means AB is not closed. Similarly, in the set A closed B open, we see that B is not member of the set, whereas B is a limit point of the set. Therefore, this set AB, A closed B open, does not contain all its limit points. Therefore, the set is not closed. हम एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। The set fx is the set of elements y belonging x जिनके डिस्टेंस फ्रॉम x less than or equal to r है, is a closed set called the closed sphere denoted by this. So dear student, ओपन स्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम ओपन स्फीयर लेते हैं तो आपको पता है कि ओपन स्फीयर में हम जब भी किसी पॉइंट को ओपन स्फीयर लेंगे एस आर, उसके लिए हम ये गोल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन होती है जिनका डिस्टेंस इस एक्स से
लेस देन आर हो। और जब भी किसी मीट्रिक स्पेस में लेते हैं तो वो वाले पॉइंट्स जो कि इसके अंदर अंदर लाई करते हैं वो इस सेट के मेंबर होते हैं। क्लोज्ड स्फीयर में क्लोज स्फीयर के लिए जो नोटेशन इस जगह पे हमें बताई गई है वो है एस और ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स एंड रेडियस आर। नाउ दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स वाई ऑफ द ग्राउंड सेट। कैसे एलिमेंट्स? जिनका डिस्टेंस इस x से या लेस हो या इक्वल हो r के। सो दिस इज द डिफरेंस। This is the difference. It means in this case we have all the points lying on the boundary as well. जो इस बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं उनका डिस्टेंस इस y से इक्वल टू r है, और वो जो इसके अंदर लाई करते हैं उनका डिस्टेंस इस y से लेस देन r है. So this is the collection of all the points which are lying on the boundary as well as inside the sphere. तो इधर डियर स्टूडेंट्स हमें ये बताया एग्जाम्पल 5 में कि fx is the collection of those elements which are either less or equal to r is a closed set called the closed sphere, denoted by this. This closed sphere is a closed set. So this is defined in this example. हम फर्स्ट थ्योरम को ट्राई करते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. लेट x बी a metric space. It means this is xd. So simply we write x is a metric space where d is a distance defined upon x. If it is a metric space, then there must be a distance function defined upon x. A subset f of x is closed if and only if its complement f dash, complement is denoted by f dash, that is equal to x minus f is open. So this is an if and only if statement. So dear students, इस जगह पर हमें if and only if statement के साथ ये दिया हुआ है कि हमारे पास कोई metric space है. Suppose this is a metric space xd. This is a metric space xd. इसमें मेरे पास ये कोई set f है which is a subset of x. This is a subset of x. This f, let a subset f of x is closed if and only if its complement, this is the complement of f, that is equal to x minus f, if this is open. And if this is open, then it is closed. So this is if and only if statement. It has two parts. If f is closed, then x minus f is open. Conversely, if x minus f is open, then f is closed. Okay, so this theorem has two parts. This is if and only if statement. If f is closed, then f complement is equal to x minus f. A set f of x is closed if and only if its complement, that is complement of f dash, which is equal to x minus f, is open. We assume first that f is closed. So it has two parts. So first we let f is closed and prove that x minus f, that is complement of f, is open.
So we assume first that f is closed. We show that f dash, that is complement of f, is open. If f dash is equal to phi, then it is open, because we already know that phi and the ground set x are always open. So if f dash is phi, in this situation we have assumed what is assumed is f is closed. But we have to prove complement of f, that is equal to x minus f, open. So case 1, if this complement is equal to phi, then f dash is open. Why it is open? Because phi is always open. Case 2, let f dash is not equal to phi, then we show that f dash is open. F dash is not phi. We may assume that f dash is non-empty. To show that f dash open, we need to take a point x of f dash. F dash is not phi. We need to show f dash open. So what we will do, we will take a point of f dash and show by certain logic that there is an open sphere with center at x and radius r, which is contained in f dash. If it is so, it means इसका जो भी पॉइंट लेते हैं उसको सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकते हैं जो कि इसके अंदर लाई करता है, और इसका मतलब ये होगा कि f डैश इज ओपन. सो हम ये शो करने की कोशिश करेंगे. सो इस जगह पर हमने f डैश का एक पॉइंट ले लिया है. सिंस f इज क्लोज्ड एंड x इज आउटसाइड, सो रिमेंबर ये मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस XD है, ये मेरे पास कोई सेट F है, ये मेरे पास F डैश है. अगर कोई पॉइंट F डैश के अंदर मौजूद है, जैसा कि X मैंने लिया है कि X बिलोंग्स टू F डैश, तो फिर याद रखें कि ये पॉइंट F को बिलोंग नहीं करेगा, चूंकि जब भी कोई पॉइंट लेंगे तो या वो सेट में होगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा. अगर ये पॉइंट F के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर ये पॉइंट F में नहीं है. F is closed and X is outside F. This is not member of F because it is a member of F dash. अगर कोई पॉइंट सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर वो उस सेट में नहीं है. So dear students, this implies x is not a limit point of f. क्यों? इसलिए कि x जो है वो f को बिलोंग नहीं कर रहा, और f जो है ये क्लोज्ड सेट है, और क्लोज सेट है तो इट कंटेन्स, इसका मतलब है कि f कंटेन्स all its limit points. जो भी जब कोई सेट क्लोज्ड होता है तो वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है. चूंकि ये क्लोज सेट है और x इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब x इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा. चूंकि अगर ये x इसका लिमिट पॉइंट होता तो फिर लाजमन इस x को, ये x इस f को बिलोंग करता.
अभी ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये x इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि f क्लोज्ड है और क्लोज सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता होता है। सो दिस इम्प्लाइज, चूंकि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन्स कि एक ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस r हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जिसका इंटरसेक्शन f के साथ फाई आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? चूंकि अगर ये फाई ना आए तो फिर ये x इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सो एस आर एक्स इंटरसेक्शन f जो है वो फाई आएगा, बिकॉज x इज नॉट लिमिट पॉइंट, बिकॉज x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f। दिस इम्प्लाइज अगर इस एस आर एक्स का जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, तो उसमें से हर एक सेट जो होता है वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है। उसमें से हर एक सेट जो होता है वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है। चूंकि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ फाई आ गया है, चूंकि एस आर एक्स ओपन स्फीयर विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर, इंटरसेक्शन एफ हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इट मीन्स कि इसमें से हर एक, एंड देयरफॉर ये एस आर एक्स कंटेन करेगा एफ के कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज इक्वल टू एफ डैश। सो डियर स्टूडेंट, हमने एक्स एफ डैश का एलिमेंट लिया था और इस जगह पर आकर हमने शो कर दिया है कि एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है जो कि एफ डैश के अंदर लाई करता है। सो इसका मतलब इस एफ डैश का मैं जो भी पॉइंट लेता हूँ उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकता हूँ जो कि एफ डैश के अंदर मौजूद होता है, वो कंटेन्ड इन एफ डैश हो जाता है, वो लाई करता है एफ डैश के अंदर। इसका मतलब है कि एफ डैश is an open, since x is arbitrary point, therefore f dash is an open set। और थ्योरम के इस हिस्से में हमने f को क्लोज्ड अस्यूम किया था। वी अस्यूम फर्स्ट दैट f इज क्लोज्ड और हमने प्रूव किया है कि ये f डैश ओपन है। अब हम इस थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करना चाहेंगे। नाउ अस्यूम दैट f डैश इज ओपन, वी शो दैट f इज क्लोज्ड। अब कन्वर्सली हम f डैश को ओपन लेते हैं और प्रूव करना चाहेंगे कि f इज क्लोज्ड। अब जिस सेट को हमने क्लोज शो करना होता है, हमने ये शो करना होता है कि वो सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। जिस सेट को हमने क्लोज शो करना होता है, हमने ये शो करना होता है कि वो सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। क्योंकि जब भी कोई सेट क्लोज होता है तो वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। सो फर्स्ट, फॉर दिस to show that f is closed, for this we show that every limit point of f is in f। हम ये शो करेंगे कि f का जो भी लिमिट पॉइंट है वो f के अंदर है। let x be a limit point of f। हमने कोई आर्बिट्रारी इसका लिमिट पॉइंट ले लिया है। हम देखते हैं कि क्या ये f को बिलोंग करता है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जो सेट के लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उस सेट के मेंबर्स भी हों। लिहाजा हमने ये x इसका कोई आर्बिट्रारी लिमिट पॉइंट लिया है। हमें ये देखना होगा कि क्या ये x इस f को बिलोंग करता है। अगर ये x इस f को बिलोंग करता है तो फिर हमारा कंक्लूजन ये होगा कि f अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। सो फॉर द टाइम बीइंग हमने x को लेट किया हुआ है, लेट कर लिया है यहाँ पर कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ f, और शो ये करना है, एंड वी नीड टू शो दैट x बिलोंग्स टू f। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कंट्रेरी। कंट्रेरी क्या है कि x
इसको बिलोंग नहीं करता, इसका लिमिट पॉइंट तो है, इसका लिमिट पॉइंट है, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ f, लेकिन इसको बिलोंग नहीं करता। अगर बिलोंग नहीं करता, सपोज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू f, अगर ये x को f को बिलोंग नहीं करता, ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है XD, दिस इज अ मीट्रिक स्पेस, इसमें ये हमारे पास सेट f है, और ये हम अस्यूम कर रहे हैं कि x f को बिलोंग नहीं करता। अगर इसे बिलोंग नहीं करता तो फिर वो कहीं पर इसके कॉम्प्लीमेंट में है। सो देन x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, चूँकि अगर ये सेट में नहीं है तो फिर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में है। अगर ये x f के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि f डैश चूँकि ओपन है, बिकॉज f डैश इज ओपन, और ये इस ओपन सेट का पॉइंट है, देयर इज एन ओपन स्फीयर SRX सच दैट x इस SRX को बिलोंग करेगा, और SRX जो है वो f डैश के अंदर लाई करेगा। It will be contained in f dash because f dash is open। जब भी कोई सेट ओपन होता है तो उसके पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन स्फीयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उस सेट के अंदर लाई करते हैं। अब चूंकि f डैश ओपन है, इट इज आवर हाइपोथेसिस इन दिस केस, इस कन्वर्स प्रूफ में हमने ये अस्यूम किया हुआ है कि f डैश इज ओपन, सो हियर वी हैव अस्यूम्ड दैट f डैश इज ओपन। चूंकि ये ओपन सेट है, लिहाजा जब भी x इसको बिलोंग करेगा तो इस x को सेंटर मानते हुए हम एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकेंगे जो इस f डैश के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि फिर इस SRX का इंटरसेक्शन जब मैं f माइनस x के साथ लूँगा तो वो फाई आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है XD, this XD is a metric space, and we know that this is our f, this is complement of f, and SRX is lying in the complement of, this is SRX, this SRX is contained in f dash, this SRX is contained in f dash। लिहाजा जब भी मैं इस SRX का इंटरसेक्शन, SRX का इंटरसेक्शन f के साथ लूँगा तो वो एम्प्टी आएगा। जब भी मैं इस SRX का इंटरसेक्शन, SRX का इंटरसेक्शन, बिकॉज दिस इज in f dash, it is in the complement of f, लिहाजा इसका जब भी इंटरसेक्शन f के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा। तो अगर इस SRX का इंटरसेक्शन मैं f माइनस x के साथ ले लूँ तो तब भी ये एम्प्टी ही रहेगा। So this is equal to phi, and this implies a contradiction. Why it is, but SRX intersection f minus x, this is equal to phi. This is a contradiction. Hence, x belongs to f, and if it belongs to f, then f contains all its limit points. Therefore, f is closed. Dear student, this completes the proof. In a metric space, a set is closed if and only if its complement is open. हम define करते हैं, dear students, closure of a set. Dear students, हम define करते हैं closure of a set in a metric space. Let A be a subset of a metric space XD. Then we define closure of A
it is denoted by A bar, or CL stands for clear of A, as the union of A and all the limit points of A. Clear of A is union of A and all the limit points of A. That is, clear of A is equal to A union AD. D is in the superscript. This represents the set of limit points of A. Sometimes this is called derived set. Derived set. So AD, that is A union AD, where AD is the set of limit points of A, where AD is set of. So clear of A is equal to clear of A is equal to A union set of limit points of A. So this implies that A is always subset of clear of A, because when we join AD together with this A, we get clear of A. So clear of A is a superset of A. Dear student, हमने जब किसी भी सेट का इंटीरियर डिफाइन किया तो आपको याद होगा कि हमने बताया कि int of A is open and largest open subset of A. This is always subset of A. But this A is a subset of the clear of A. So this relation holds. हम एग्जाम्पल लेते हैं. Let x is equal to R with the usual metric, with the usual distance is defined in R. Open set A with the open interval AB, then clear of A. हम dear students, इसमें आपको पता है कि हमने R पर usual metric को लिया है. This is R, this is some open interval A, this is an open set. Open intervals are open sets in the usual metric. We know that A is limit point of A. Similarly, we know that B is limit point of A. Although A is not member of A, although B is not member of A, and every point of the interval is again a limit point of A. So A union AD will become this closed interval AB. Because A is a limit point, it is a member of AD. A is a limit point of A, it means A is a member of AD, because AD, derived set of A, is the set of limit points of A. Once it is a limit point, it will become member of AD. Similarly, this B is a member of AD, and all the other points which are inside the open interval are again the limit points of the set A. Hence all the points are member of AD. So whenever we will take A union AD, we will be getting this closed interval. So this closed interval, which is by definition this clear of A, or this can be also written as A bar. So dear students, this is the clear of A. Dear students, हम एक और एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. X is equal to R2 with the usual metric in plane. You know that the distances are you know that open sphere in R2 are open disks. So here we are considering A is the collection of those elements of R2 whose modulus is less than 1. Then clear of A is the collection of those points of R2 which are less than or equal to 1. Dear students, आपको मालूम है कि R2 में हमने जो सेट A लिया है उसका सेंटर ओरिजिन पर लिया है और रेडियस 1 लिया है.
because z mod is less than 1, that is x square plus y square is square root is less than 1, then this is a set A. This is a set A. This is the collection of those elements of R2 whose sum of the square root of the sum of squares is less than 1. Z modulus is less than 1. So from here, the point which is lying on the boundary of this circumference, if we take an open sphere around this point, you can notice that this open sphere will contain many points of the set A. In this case you can observe it. So हम इस circumference पे, आपको मालूम है कि circumference पे मौजूद points इस set A के members नहीं हैं, because we are taking this z mod less than 1, because we are taking z mod less than 1, we know z is equal to xy. It means x square plus y square modulus is less than 1, or x square plus y square is less than 1. So this is a circle with center at origin and radius 1. अगर equal to 1 लेंगे तो ये वो पॉइंट्स होंगे जो सर्कमफेरेंस पर हैं. तो हमने वो वाले x और y कंसीडर करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम और फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेस देन 1 रहे. इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो इस सर्कमफेरेंस पर हैं वो इस सेट A के मेंबर नहीं हैं. जो पॉइंट्स इस सर्कमफेरेंस पर हैं, जो पॉइंट्स इस सर्कमफेरेंस पर हैं वो इस सेट A के मेंबर नहीं है. So this is a point on the circumference. This is not a member of the set A. चूंकि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 के बराबर है, A के पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से लेस देन 1 होना चाहिए. ओके, तो लेकिन जिस वक्त इस पॉइंट का मैं ओपन स्फीयर लेता हूं तो वो ओपन स्फीयर इस सेट A के बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर लेता है. जो भी मैं ओपन स्फीयर लेता हूं, अगर इस पॉइंट को मैंने x कहा है, अगर ये x इस बाउंड्री के ऊपर पड़ा है, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर पड़ा है, तो इसका ओपन स्फीयर जितने भी छोटे से छोटे रेडियस का लें, अगर इसमें से मैं x को निकाल भी दूं तो तब भी इसका इंटरसेक्शन जिस वक्त मैं इस सेट A के साथ लेता हूं तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है. इसका मतलब ये हुआ कि x जो कि सर्कमफेरेंस पे मौजूद है इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A, और वो तमाम पॉइंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं उनके ओपन स्फीयर्स भी जब लिए जाएं, और उस ओपन स्फीयर में से भी अगर इस पॉइंट बजाते खुद को डिलीट कर दिया जाए तो स्टिल दिस ओपन स्फीयर विल बी कंटेनिंग मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट A. लिहाजा हर वो पॉइंट जो इस A के अंदर लाई करता है या इस A के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है वो इस सेट A का लिमिट पॉइंट है. लिहाजा जिस वक्त मैं इस A के अंदर इसके लिमिट पॉइंट्स को शामिल करता हूं तो मुझे रिजल्टेंटली ये सेट मिलता है. जिसके तमाम के तमाम पॉइंट्स इनसाइड एंड तमाम के तमाम पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे पड़े हैं, चूंकि वो भी लिमिट पॉइंट्स हैं. सो दिस इज क्लियर ऑफ A इन दिस केस. और अगर इसका हम फार्मूला बनाना चाहें तो फिर ये क्लियर ऑफ A इस केस में बनेगा वो पॉइंट्स Z के R2 के, वो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से या लेस देन 1 है अंदर वाले पॉइंट्स या इक्वल टू 1 है सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट. सो दिस विल बी द क्लियर of the set in this case. Dear student, I hope कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे.
Dear students, A is closed in a metric space, in any metric space XD, in any metric space XD, we have A is closed, we have for A subset of X, A is closed if and only if A is equal to closure of A. We have another theorem that closure of A is the smallest closed superset of A. And we have the third theorem, closure of A equals the intersection of all closed supersets of A. So dear students, these three results are important results. You keep it remembering, and we will use these results in our subsequent studies. आप इन तीनों रिजल्ट्स को याद रखें. किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जब भी कोई एक सबसेट ए लिया जाए तो वो क्लोज्ड होता है इफ़ एंड ओनली इफ वो अपने क्लियर के बराबर हो, और वो अगर क्लियर ऑफ ए लिया जाए तो क्लियर ऑफ ए हमेशा क्लोज सेट होता है, और ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए. गोया के स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन, जितने भी क्लोज सेट ए को कंटेन कर रहे होते हैं उनमें से ये सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो कि ए को कंटेन कर रहा होता है. और तीसरी बात यह है कि क्लियर ऑफ ए इक्वल्स द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए. ए से बड़े जितने भी क्लोज सेट्स हैं, जितने भी क्लोज सेट्स ए को कंटेन कर रहे हैं, अगर उन तमाम का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो फिर क्लियर ऑफ ए के बराबर बन जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट को, कि किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं. हमने देखा कि जब भी लिमिट पॉइंट डिफाइन किया जाता है तो वो किसी सेट का डिफाइन किया जाता है. वी हैव डिफाइंड क्लोज सेट्स. हमने ये डिफाइन किया कि क्लोज सेट्स कौन से सेट्स होते हैं. वो सेट्स होते हैं जो तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करते हों. उस सेट F को क्लोज कहेंगे कि वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता हो. फिर हमने डिस्कस किए हैं सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू लिमिट पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स, एंड देन वी हैव डिफाइंड क्लियर ऑफ ए सेट. हमने किसी सेट के क्लियर को डिफाइन किया है. हमने फिर ये प्रूव किया है कि कोई भी सबसेट f ऑफ x क्लोज्ड होता है इफ़ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. और हमने क्लियर से रिलेटेड 3 रिजल्ट्स को मेंशन किया है. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर अब तक हमने ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की स्टडी की है. आप अपने इन लेक्चर्स को केयरफुली रिवाइज कीजिए. मुझे उम्मीद है कि आप कंफर्टेबली इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड भी करेंगे और उनको याद भी रख सकेंगे. थैंक यू.